Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Cambridge Mathematics 4024 and I'm your teacher Arzoo. As you know, last day we were discussing about the chapter number 1 and we had almost completed this chapter in last week. Now today we are going to start the next chapter and new chapter, chapter number 7, which is about relation and function. So we will do the exercise 7a of related to these two topic, relation and function. But before starting the exercise, I will tell you about relation, functions, domain, codomain and range. So first of all, I will tell you about relation. What is relation? Because without knowing relation, we can't understand the function. So first of all, I will tell you about relation. So what is relation? As you know, in our practical life, in our daily life, we are having different type of relation with a one person. Okay, but in mathematics, the relationship mean we will discuss the relationship between the numbers. Okay, in mathematics the relationship between numbers is like this, mean के one number is greater than this number and this number is lesser than this number and this number is equal to this number and so on. But first of all, I will tell you about relation and I will give you the example from our daily life for this concept relation, ke what is relation. So here we will discuss about the relationship between the many boys and their friendship. Okay, so my dear, we are having two sets. Like one set, in one set we are having three persons like Ali, Umar and Azan. And in our other sets we are having also three boys, Dev, John and Fahad. Okay, so we will discuss the relationship between these boys. ठीक है, I am discussing about the relation because without knowing relation you can't understand the function. ठीक है, so Ali is we are discussing the friendship between these boys. Ali is related to Dev. It means that Ali is friends of Dev. Umar is related to Fahad. It means that Umar is friend of Fahad. And Azan is related to John. It means that Azan is friend of John. ठीक है बेटा, you can see in these two sets, ठीक है, कि अली की जो फ्रेंडशिप है वो देव के साथ है, उमर की फ्रेंडशिप फहद के साथ है, अजान की फ्रेंडशिप क्या है, जॉन के साथ है. तो हम लोग यहाँ पे इन बॉयज़ टू सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, इन बॉयज़, और इस टू सेट्स में किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इनकी फ्रेंडशिप को. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिलेशन. अब इट डजंट मीन डैट कि अली का यही एक फ्रेंड होगा, देव और भी फ्रेंड होंगे, लेकिन हम लोग अभी फ़िलहाल इतने रिलेशन को डिस्कस करेंगे. सो हमारे पास जो फर्स्ट सेट है बॉयज़ का, अली, उमर एंड अजान. Before starting the relation topic of relation, I have told you about the word domain, कि what is domain. ठीक है, सो अली, उमर एंड अजान, जो फर्स्ट सेट में हमारे पास थ्री बॉयज़ हैं, इन तीनों बॉयज़ को हम क्या करेंगे, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डोमेन. ठीक है, बट इन सेकेंड सेट वी आर ऑल्सो हैविंग थ्री बॉयज़, देव, जॉन एंड फहद. सो इट्स मीन्स दैट दीज थ्री बॉयज़ आर द एलिमेंट्स ऑफ कोर डोमेन या रेंज. हम इन्हें कोर डोमेन या क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट रेंज. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जो फर्स्ट सेट में जिन बॉयज़ को हमने डिस्कस किया है वो आपकी डोमेन होती है, और जो सेकंड सेट में हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया है वो आपकी कोर डोमेन होती है. एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग हेयर आई विल नॉट फॉरगेट टू टेल यू इमेज, कि व्हाट इज़ इमेज. अच्छा बेटा, यहाँ पे ये देखें, यू कैन सी अली इज़ फ्रेंडशिप, अली इज़ हैविंग फ्रेंडशिप विद देव. अली की जो फ्रेंडशिप है वो देव के साथ है. ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, अब इसका मतलब है, और जो हमारे पास कोर डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं हम इनको रेंज भी कहते हैं, और दीज आर इमेजेस, इनको इमेजेस भी कहते हैं, क्योंकि अली रिलेट कर रहा है देव को, तो इसका मतलब है अली का इमेज क्या बना, देव. उमर रिलेट कर रहा है फहद को, तो इसका मतलब है फहद हमारा डोमेन है और इस डोमेन का इमेज क्या बना, फहद. और अजान हमारा किसको रिलेट कर रहा है, जॉन को, तो इसका मतलब है अजान का जो इमेज है वो क्या बना है, जॉन.
सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन देयर फ्रेंडशिप। ठीक है, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं ये करूँ कि इस रिलेशनशिप को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर ये हमारे डोमेन के एलिमेंट है, ये हमारे को डोमेन के एलिमेंट्स है। अगर फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ आई एम गोइंग टू राइट दीज रिलेशन इन ऑर्डर पेयर फॉर्म। ऑर्डर पेयर क्या होता है? ऑर्डर पेयर क्या होता है कि जब हम किसी भी टू एलिमेंट्स को या किसी भी टू थिंग्स को एक स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट की फॉर्म में लेते हैं। लाइक मैंने फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? डोमेन का होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है? को डोमेन या रेंज का होता है। ओके, सो अली किसको रिलेट कर रहा है? देव को। अली इक्स कोमा देव, तो अली एंड देव। अच्छा, दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? उमर कोमा फहद, उमर एंड फहद। तीसरा हमारा क्या ऑर्डर पेयर बनेगा? अजान कोमा देव, यानी कि अजान एंड जॉन। तो ये हमने जो फॉर्म लिखी है, दिस इज द ऑर्डर पेयर फॉर्म ऑफ ओवर दिस गिवन रिलेशन। हमारे इस गिवन रिलेशन की क्या है? ऑर्डर पेयर फॉर्म है। अब यू कैन सी डैट इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है अली, उमर एंड अजान, दीज आर ऑफ एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, एंड द सेकेंड एलिमेंट देव, फहद एंड जॉन, दीज आर ऑफ एलिमेंट ऑफ ओवर को डोमेन। अच्छा बेटा, यू कैन सी ये हमारा एक रिलेशन बन गया। हम इसको क्या कॉल करेंगे? ये हमारा एक रिलेशन बन गया है। ठीक है, यू कैन सी डैट इन दिस रिलेशन, ठीक है, जो हमारे डोमेन के एलिमेंट हैं लाइक अली, उमर एंड अजान, ये हमारे डोमेन के एलिमेंट है ना, दे आर रिपीटिंग ओनली वन टाइम। आप यू कैन सी दैट देयर इज़ नो रेपिटेशन बिटवीन द डोमेन एलिमेंट। डोमेन एलिमेंट में कोई भी रेपिटेशन नहीं है। मीन अली, उमर एंड अजान सिर्फ एक ही दफ़ा हमारे ऑर्डर पेयर में आए हैं। देयर इज़ नो रेपिटेशन बिटवीन द डोमेन एलिमेंट। सो अगर किसी भी ऐसे रिलेशन में बस आपको सिर्फ याद रखना है कि व्हाट इज़ फंक्शन। बेसिकली हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे फंक्शन को ही बेसिकली डिस्कस करना है। तो हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन इन आवर डेली लाइफ, बट एवरी रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। देखिए हमारे पास क्या है कि एक पर्सन के डिफरेंट फ्रेंड्स होते हैं, एक पर्सन के मोर देन वन फ्रेंड होते हैं। ऐसे ही है ना, एक पर्सन का जो रिलेशन होता है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं होता, उसके बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन होते हैं। तो हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, लेकिन फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा? जब हमारे पास हर पर्सन का इमेज जो होगा वो यूनिक होगा। यू कैन सी डैट अली ने सिर्फ किसको क्रॉस किया है? देव को। इसका मतलब है अली दोबारा किसी और को क्रॉस नहीं कर रहा, अली किसी और को रिलेट नहीं कर रहा हमारे इस सेट में। तो अली इज हैविंग ओनली यूनिक इमेज। सेम लाइक उमर ने सिर्फ फहद को रिलेट किया है, तो उमर इज हैविंग यूनिक इमेज। अजान ने किसको रिलेट किया? जॉन को, तो अजान इज हैविंग यूनिक इमेज। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें सिर्फ हर पर्सन अपने को डोमेन में सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिलेट करता हो, यानी कि हमारा डोमेन इज नॉट रिपीटिंग, तो इट्स मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए अली, देव, उमर एंड फहद, अजान एंड जॉन, यू कैन सी इन दीज ऑर्डर पेयर्स के देयर इज नो रेपिटेशन बिटवीन द डोमेन एलिमेंट। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस कि इफ डोमेन इज नॉट रिपीटिंग देन दैट इज अ फंक्शन। कि जब हमारे पास डोमेन रिपीट ना हो रही हो तो देन दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन। इफ डोमेन इज रिपीटिंग देन इट्स नॉट अ फंक्शन। सो लेट अस डिस्कस कि व्हेन द गिवन रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये गिवन रिलेशन फंक्शन कब नहीं होता। नो यू कैन सी डैट यहाँ पे इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है? ठीक है, अली को मैंने रिलेट कर दिया है देव के साथ, अगेन अली को मैंने रिलेट कर दिया है जॉन के साथ, फिर उमर को मैंने रिलेट कर दिया है फहद के साथ, और अजान को मैंने रिलेट कर दिया है जॉन के साथ। यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। ये रिलेशन है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन है बट इट्स नॉट अ फंक्शन। हाउ? ठीक है, व्हेन
व्हेन a relation is not a function net no I am going to tell you कि कब एक relation function नहीं होता. You can see that यहाँ पे अली का इमेज क्या बना है, देव. अली का दोबारा इमेज क्या बना है, जॉन. सो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन थी कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन इज हैविंग यूनिक इमेज, बट इन दिस एग्जाम्पल अली इज नॉट हैविंग द यूनिक इमेज. अली को एक दफ़ा फ्रेंडशिप हो गई देव के साथ, फिर अली अगेन फ्रेंडशिप कर रहा है जॉन के साथ. इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ इट्स अ फैक्ट, ये फैक्ट है कि हमारे पास अली के मोर देन वन फ्रेंड हो सकते हैं. बट इन मैथमेटिक्स व्हेन वी आर गोइंग टू डिफाइन अ फंक्शन, तो किसी भी एक नंबर का रिलेशन मोर देन वन नंबर के साथ नहीं होना चाहिए. किसी भी एक डोमेन एलिमेंट का रिलेशन को डोमेन के साथ मोर देन वन नहीं होना चाहिए, सिर्फ यूनिक होना चाहिए. जब मैं इसे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखती हूँ देन यू विल गेट अली किसको रिलेट कर रहा है, देव को. अली कोमा देव. उमर अली फिर अगेन किसको रिलेट कर रहा है, जॉन को. अली कोमा जान. देन उमर किसको रिलेट कर रहा है, फहद को. उमर एंड फहद. और अजान किसको रिलेट कर रहा है, फहद को. तो अजान एंड फहद. सो यू कैन सी इन दिस ऑर्डर पेयर वी आर हैविंग द प्रॉब्लम हेयर. हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है. क्या प्रॉब्लम हुई है, हेयर वी आर हैविंग द रेपिटेशन इन आवर डोमेन एलिमेंट. यहाँ पर हमारे पास डोमेन एलिमेंट में क्या है जी, रेपिटेशन है. अली इज रिपीटिंग मोर देन वन टाइम. अली इज हैविंग मोर देन वन इमेज. अली इज नॉट हैविंग द यूनिक इमेज. बट के मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन में बताया है कि इफ डोमेन इज नॉट रिपीटिंग एवरी डोमेन एलिमेंट इज हैविंग यूनिक इमेज देन दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. तो ये हमारे पास क्या होगा, फंक्शन होगा. हेयर यू कैन, तो इसका मतलब होगा कि वी आर हैविंग प्रॉब्लम हेयर. यहाँ पे अली रिपीट हो रहा है, डोमेन एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन नहीं है. हेयर यू कैन सी डैट यहाँ पे हमारे पास देखें अली देव, अली एंड जॉन, उमर एंड फहद, अजान एंड फहद. आप यू कैन सी डैट, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है, जो फहद और यहाँ पर देखें जो हमारे पास रेंज एलिमेंट है ना, क्योंकि हमारे पास फहद जो था वो हमारा को डोमेन का एलिमेंट था, तो हमारे पास जो को डोमेन का एलिमेंट है फहद वो रिपीट हुआ है. बट इट इज़ नॉट आवर कंसर्न. ये हमारा कंसर्न नहीं है कि हमारा इफ देर इज रेपिटेशन बिटवीन आवर को डोमेन, बिटवीन आवर रेंज एलिमेंट. अगर रेंज एलिमेंट में रेपिटेशन होगी तो इट्स नॉट आवर कंसर्न. हमारा कंसर्न है कि देयर शुडंट बी रेपिटेशन बिटवीन आवर डोमेन एलिमेंट. हमारे डोमेन एलिमेंट में कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. ओके अगर रेंज के एलिमेंट में रेपिटेशन हो जाए ना, इट्स नॉट आवर कंसर्न, वो हमारा कंसर्न नहीं है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन एंड फंक्शन, कि कब कोई भी रिलेशन फंक्शन होता है, जब उसमें हमारे पास क्या होता है कि डोमेन एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो. सो दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन. ओके. सो नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अगर आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल हो, लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिया 1 2 3 2 4 8. लाइक मैंने यहाँ पे 1 को क्रॉस करवा दिया है 2 के साथ. ठीक है. फिर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 2 को क्रॉस करा दिया है मैंने 4 के साथ, और 3 को क्रॉस करा दिया है मैंने 8 के साथ. ठीक है. अब लेट चेक इज इट अ फंक्शन और नॉट. इसको चेक करने के लिए मैं इसकी रिलेशन के ऑर्डर पेयर बनाती हूँ. क्या ऑर्डर पेयर बना है, 1 2 2 2 एंड 3 8. Here you can see that 1 ने किसको रिलेट किया है, 2 को. 2 ने किसको रिलेट किया है, 2 को. 3 ने किसको रिलेट किया है, 8 को. यानी कि 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 2 है, और 3 का इमेज 2 है. यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू every element of domain should be related to our co-domain element. रेंज का, डोमेन का हर एलिमेंट को डोमेन को रिलेट करना चाहिए. ठीक है. कोई भी एलिमेंट हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए जो को डोमेन को रिलेट नहीं करे. हाँ, और दूसरी बात कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज हैविंग द यूनिक इमेज इन आवर को डोमेन या रेंज. अच्छा, यूनिक इमेज का मतलब होता है कि देखो 1 ने सिर्फ एक दफ़ा ही, ठीक है, किसको रिलेट किया, 2 को. 1 दोबारा तो किसी और को रिलेट नहीं करा ना. अच्छा, बट इट डजंट मीन डैट कि 2 ने किसको रिलेट कर दिया है, 2 को. इट्स मीन्स डैट कि 2 का इमेज भी यूनिक है. बेशक 2 किसको क्रॉस कर रहा है, अगेन उसी एलिमेंट को जिसको 1 क्रॉस कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 1 का जो इमेज है वो 2 है, और 2 का इमेज भी क्या है, 2 है. दीज 2 एलिमेंट्स आर हैविंग द यूनिक इमेज.
बट दीज टू एलिमेंट्स आर नॉट हैविंग द डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट इमेज का मतलब होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स की जो हमारे पास इमेजेस हैं वो डिफरेंट नहीं है, सेम है। अगर डिफरेंट हो तो इसका मतलब होता है कि वो डिस्टिंक्ट भी है और यूनिक भी है, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या हुआ है कि 1,2, 2,2, 3,8। व्हाट आर आवर बेसिक कंसर्न कि यहाँ पे देखो ये डोमेन का एलिमेंट है, ये डोमेन का एलिमेंट है और ये डोमेन का एलिमेंट। देयर इज नो रेपिटेशन बिटवीन द डोमेन एलिमेंट, बट रेंज के एलिमेंट एक 2 है, फिर 2 है, फिर 8 है, ठीक है। बट जो रेंज का एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है, बट इट्स नॉट आवर कंसर्न, इट देयर, ठीक है, देयर शुड बी नो रेपिटेशन बिटवीन द डोमेन एलिमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशन, फंक्शन एंड domain and codomain. So now let's start the exercise 7a and we will do the question number 1 of exercise 7a. Let's start. Okay, question number 1 of exercise 7a. You can, I'm not going to write the statement of this question. No, you can simply see in your book. The statement is given that you have to discuss these functions, these relations is given in your book. Arrowheads are given in your book and you just have to tell okay, is this function or not. So first question number 1 part A, the first relation is given like this, ठीक है। there our domain is this, ये हमारी क्या है, डोमेन है, और ये हमारी क्या है, कोडोमेन है या रेंज है, ओके, ठीक है। यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 2, 4, 6, 8 और कोडोमेन के एलिमेंट्स क्या गिवन है, 1 and 2, ठीक है। वो हाँ, और ये हमें रिलेशन बना के दिया हुआ है बुक में कि 2 ने किसको क्रॉस किया है, 1 को, 4 ने किसको क्रॉस किया है, 1 को, 6 ने किसको क्रॉस किया है, 2 को, 8 ने किसको क्रॉस किया है, 2 को। हेयर यू कैन सी दैट विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एन एग्जाम्पल कि 2 का यूनिक इमेज है 1 और 4 का भी यूनिक इमेज है 1, ठीक है। 2 और 4 ने सिर्फ नेक्स्ट वाले सेट में 1 टाइम ही क्रॉस किया है, या दीज टू एलिमेंट्स है आर हैविंग यूनिक इमेज बट नॉट डिस्टिंक्ट इमेज। इनके इमेज डिस्टिंक्ट नहीं है, डिफरेंट नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट नहीं है, इमेज यूनिक हो, डिस्टिंक्ट हो या ना हो ये हमारे फंक्शन में कंसर्न नहीं करता, बट इमेज यूनिक हो। यहाँ पे देखिए उसने क्रॉस, दोनों ने एक ही एलिमेंट को क्रॉस किया है, ठीक है। बेशक रेंज में रेपिटेशन हो गया, डोमेन में रेपिटेशन नहीं हो रही। सो हमारे पास ये रिलेशन बनाकर दे दिया गया। नाउ वी विल राइट दिस रिलेशन इन ऑर्डर पेयर फॉर्म, 2 व 1, 4 व 1, 6 व 2, 8 व 2, ठीक है। यू कैन सी दैट यहाँ पे डोमेन एलिमेंट्स क्या है, 2, 4, 6 and 8. You can see that the domain element is not repeating, that's why it's a function. You have to only see this कि domain element shouldn't be repeated. डोमेन एलिमेंट को रिपीट नहीं होना चाहिए, सो इट्स अ फंक्शन। यू कैन सी दैट 1, 1, 2, 2 हमारी यहाँ पे रेंज क्या है, 1 and 2, ठीक है। 1 भी रिपीट हो रहा है, 2 भी रिपीट हुआ है, बट इट्स नॉट अवर कंसर्न, हमारी डोमेन जो है वो रिपीट नहीं हुई। नाउ कम टू द पार्ट बी में हमें क्या रिलेशन गिवन है, 2, 4, 6, 8। इट इज गिवन इन योर बुक ABCD. नाउ 2 is going to cross A and 2 is again going to cross B, ठीक है। आपको तो यहीं से ही पता लग जाना चाहिए कि अब डोमेन का एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट सेट में जो फर्स्ट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो डोमेन और ये हमारी कोडोमेन, ठीक है। ओके, सो 2, 4, 6, 8 ABCD. 2 is going to cross A, 2 again crossing B, 4 is crossing C, 6 is crossing C and 8 is crossing D. मतलब है 2 का इमेज क्या है, A है, 2 का इमेज फिर B है, 4 का इमेज C है, 6 का इमेज C है एंड 8 का इमेज D है। नाउ अच्छा, और वन थिंग मोर, ये आपने याद रखनी है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव द इमेज इन कोडोमेन। नाउ कम है, अब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें 2,A, 2 व B, 4 व C, 6 व D, 8 व D। 2 ने किसको क्रॉस किया, A को, 2 ने किसको क्रॉस किया, B को, 4 ने किसको क्रॉस किया, C को। इनको हम इस तरह से लिख देंगे, बट हेयर यू कैन सी दैट इन वी आर हैविंग प्रॉब्लम हेयर। इन दो ऑर्डर पेयर्स में हमें क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 व A, 2 व B। हेयर यहाँ पे हमारे पास ये दोनों जो ऑर्डर पेयर हैं इसमें हमारे पास डोमेन इज रिपीटिंग। इट्स मीन्स दैट वेन एवर डोमेन विल बी रिपीट देन इट विल बी द गिवन रिलेशन विल नॉट अ फंक्शन, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। नाउ कम टू द पार्ट डी। अब पार्ट डी में देखें, पार्ट डी क्या है, 2, 4, 6, 8 PQR।
ठीक है, 2 इज गोइंग टू क्रॉस P, 4 इज गोइंग टू क्रॉस P, ठीक है, 6 इज गोइंग टू क्रॉस R एंड 8 इज गोइंग टू क्रॉस R। अच्छा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे Q को कोई एलिमेंट क्रॉस नहीं करा, डजंट मीन दैट Q रह गया जी, Q को किसी ने क्रॉस नहीं किया, सो इट्स नॉट अवर कंसर्न। अगर हमारे पास कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट रह जाता है जिसको डोमेन का कोई एलिमेंट क्रॉस ना कर रहा हो, तो वो हमारा कंसर्न नहीं होगा। ठीक है, हमारा कंसर्न है कि एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड बी have the relation in our codomain. So here what type of relation we are having? 2 wa P, 4 wa Q, 6 wa R and 8 wa R. Here you can see that, ठीक है, ये हमारे डोमेन के एलिमेंट्स हैं एंड देयर इज नो रेपिटेशन इन आवर डोमेन एलिमेंट, बट आवर कोडोमेन एलिमेंट आवर रेंज इज रिपीटिंग, लाइक P 2 दफ़ा आ रहा है, R भी 2 दफ़ा आ रहा है, बट इज नॉट अवर कंसर्न। ठीक है, सो इट इज़ अ फंक्शन। सो लास्ट पार्ट E which we will discuss. पार्ट E है 2 4 6 8 1 2 3। ठीक है, अब इट्स नॉट अ फंक्शन। वाई? हेयर यू कैन सी दैट 2 किसको क्रॉस कर रहा है? 1 को। 6 किसको क्रॉस कर रहा है? 2 को। 8 किसको क्रॉस कर रहा है? 3 को। बट हियर 4 इज लेफ्ट इन आवर डोमेन, जबकि हमारी पिछली एग्जाम्पल में क्यू हमारे पास क्या था, रह गया था, जिसने डोमेन के एलिमेंट को क्रॉस नहीं किया था। मैंने आपको बताया था कि इट्स नॉट आवर कंसर्न, बट इन दिस पार्ट 4 इज लेफ्ट। 4 is not going to cross any element in our codomain, in our range. तो इट्स मीन्स दैट 2 का इमेज 1 है, 6 का इमेज 2 है, 8 का इमेज 3 है। नो डाउट कि these elements are having unique image, but आपको मैंने स्टार्ट में बताया है कि every element in a relation, every element of domain in a relation should have a unique image in our codomain. बट हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो डोमेन का एक एलिमेंट है 4, उसका यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बन रहा। ठीक है, हालांकि बाकी जितने भी इमेज बना रहे हैं वो यूनिक हैं, लेकिन डोमेन का एक एलिमेंट रह गया। तो डोमेन के एलिमेंट मिस नहीं होने चाहिए। डोमेन का हर एलिमेंट किसको रिलेट करना चाहिए? कोडोमेन को, एंड इट रिलेशन शुड बी ऑफ वन टाइम। इट रिलेशन शुड बी ऑफ वन टाइम, यानी कि डोमेन का एलिमेंट इज हैविंग ओनली यूनिक इमेज इन आवर कोडोमेन। सो इट्स नॉट अ फंक्शन बिकॉज 4 हैज़ नो इमेज। ठीक है, सो माय डियर, इट इज़ द एंड ऑफ दिस लेसन नाउ, एंड यू हैव टू डू द पार्ट D and part F in your homework, and inshallah I will further discuss about this topic in our meet class. Thank you so much.